about the phasor diagram of the alternator at different load condition. Now these load condition were taken in a generalized form, which were that lagging, leading and unity power factor. Is it clear? Now a tricky examiner can give you zero lagging power factor. Draw the phasor diagram of an alternator operating at a zero lagging or zero leading. Is it clear? At zero lagging and zero leading, what will happen? Suppose this is there. If I say draw the phasor diagram of a synchronous alternator, okay, at a zero lagging. So what you will do? This IA will be like this. Will be at an angle of 90 degree lagging with respect to terminal voltage VT. Is it clear? And then what will be IARA? It will be like this because IA is in this direction. Okay. Then what will be the IAXA? Sorry, this is not straight. You got my point? And then the resultant will be like this E. You got my point? You need not have to worry about it. If you know the concept, the same case is for the leading. If it is leading 90 degree, what you will do? Suppose leading power factor case is there. What you will do? This IA will be now zero leading. You got my point or not? Okay. And therefore, your IA either will be like this. IA axis will be like this. And this will be your E. And the angle between VT and E has been designated as delta, also known as power angle. Yesterday I haven't given you the word. This is known as power angle. It is this angle because later on you will see the active power. ये power system में भी formula काम आएगा जब हम power की power diagram पे बात करेंगे इस पूरे synchronous machine की तो आपके एक formula आएगा जो power system में भी काम आता है EF into VT upon XS sin delta. ऐसा पढ़ा है स्टेबिलिटी में? स्टेबिलिटी आएगी अभी आपके कोर्स में नहीं है, आगे कोर्स में आएगी. पावर सिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ ए जनरेटर. इज इट क्लियर? बिकॉज अल्टीमेटली हु इज जनरेटिंग? सिंक्रोनस जनरेटर. तो आपको मालूम पड़ा इस डेल्टा पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है कि पावर स्टेबिलिटी. इज इट क्लियर? वो हम बाद में बात करेंगे बट दिस डेल्टा इज नोन एज पावर एंगल. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट हाउ ई लीड्स द VT in case of synchronous generator. Now so far analysis I am doing for whom? मैं जो अभी जो एनालिसिस कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? सिंक्रोनस जनरेटर के लिए. उसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? अल्टरनेटर भी. ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना. ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर एट लीडिंग, लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर. तो ध्यान रखना. अब किसके बारे में पूछा है? मोटर के बारे में. तो ये मत बना देना, उसमें हल्का सा फर्क आता है. उसमें से हल्का सा फर्क आता है. वो क्या फर्क आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ये भी हमने बता दिया था नेग्लेक्ट करके. Now synchronization of alternator. What do you mean by synchronization? First of all, this is the synchronization of, because as I've already told you that generating station, whether it is at the Rawatbhata, whether it is at Kota, whether it is Jaisalmer, whether it is Suratgarh, or where it is a Mahi hydropower plant. I am naming the some plants which are there in the Rajasthan. मैंने ऐसे plants के नाम ले दिए generating station जो कहाँ पे है? राजस्थान में. इससे ज्यादा भी है. ठीक है, तो उन सब पर क्या लगा हुआ है? फ्यूल अलग हो सकता है. जैसे कोटा, कोटा का क्या नाम है? कोटा में जो है प्लांट उसका क्या नाम है? कोटा सुपर थर्मल पावर. कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन. तो थर्मल का क्या मतलब हुआ? Coal is being used as a fuel source and this coal heat energy is being used to make the water obtained from Chambal river into steam.
convert this water into steam, a high pressure stream. Okay, and this stream falls on turbine, and to the shaft of the turbine is connected our alternator और synchronous generator. तो केवल एक ही होगा. अब आपको थ्योरेटिकली ऐसा लगेगा सर एक जनरेटर होगा वो सब पैदा करता होगा. No, there are thousands of hundreds of generators are there, but these all has to be connected in synchronization. सभी एक साथ एक ही वोल्टेज प्रोड्यूस करें. अब हमें आगे भेजना 11 kV, ठीक है, और एक जनरेट कर रहा है 1 किलो वोल्ट, एक जनरेट कर रहा है 5 किलो वोल्ट, एक जनरेट कर रहा है 6 किलो वोल्ट. अच्छा, एक जनरेट कर रहा है और 2-3 11 किलो पे जनरेट कर रहा है, और जो 11 किलो पे जनरेट कर रहा है कोई कर रहा है 40 हर्ट्ज पे, कोई कर रहा है 30 हर्ट्ज पे, कोई कर रहा है 20 हर्ट्ज पे, और कुछ एक लोग 50 हर्ट्ज पे कर रहे हैं. तो ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. सिंक्रोनाइजेशन मींस देयर वोल्टेज लेवल शुड बी सेम, देयर फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, फेज सीक्वेंस शुड बी सेम. ये कौन से अल्टरनेटर है? 3 फेज. कौन से है? 3 फेज. तो आर को आर के साथ कनेक्ट करना है, वाई को वाई के साथ कनेक्ट करना है, और क्योंकि ये सब किस में लगे होंगे? पैरेलल में. किस में लगे होंगे? पैरेलल में. हमने ट्रांसफॉर्मर में भी पैरेलल किया था, याद है? पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था. तो उसमें भी कुछ कंडीशंस होती थी. कंडीशन होती थी कि नहीं होती? कि ऐसे चल भाई कितना का तेरे 11/400, तेरे कितने का? मेरा यार 33/11 का. चलो दोनों को पैरेलल लगा दो. क्या लगा सकते? नहीं. द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी सेम, इंपीडेंस रेशियो शुड बी सेम, फेज सीक्वेंस शुड बी सेम. अरे ये सब कंडीशंस थी कि नहीं थी? तो सिंक्रोनाइजेशन भी अगर अल्टरनेटर्स का करना है एक साथ सिंक्रोनाइजेशन मींस कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस. कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है कि उनका वोल्टेज सेम होना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए. अगर एक भी गड़बड़ हो गया, सिंक्रोनाइजेशन विल लास्ट, एंड एट अ वेरी हायर लेवल लूजिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मींस ब्लैकआउट. लूजिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मींस ब्लैकआउट. तो कई बार ऐसी 2012 में हुई थी, 2016-18 में भी हुई थी. आप चेक कर लेना इंटरनेट से. इंडिया में की बता रहा हूं, खासकर अपना ये जो नदर्न ग्रिड है, नॉर्थ वेस्ट ग्रिड जो अपना ये पड़ता है, इसमें हुआ था. ठीक है. और एक बार, क्योंकि अब ये ब्लैकआउट सिचुएशन इतना डेंजर क्यों है? मतलब इसका मतलब जनरेटर सभी ऑफ हो गए, और जनरेटर को ऑफ करने के लिए, ऑफ हो गया, उसको वापस रेस्टोर करने के लिए, वापस उसको चलाने के लिए कम से 6 और 7 दिन लगते. कितने? और यहां तो आधा घंटे ही बिजली बंद हो जाए, नेता नगरी चालू है, और 7 दिन तक बंद हो जाए तो क्या होगा? कत्लेआम, दंगे. इज इट क्लियर? गाड़ियां जला देंगे. कि कौन कौन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए? तुम सोचिए गाड़ी आने से भी कि नहीं, जब भीड़ का कोई सत्य नहीं होता है. अच्छा, तूने किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 7 दिन तक लाइटें बंद, चला तो उसका घर. 2007 में भारत वर्ल्ड कप हार गया था, याद है? हैं? याद है? ठीक है. तो धोनी के घर पे आग लगा दी थी लोगों ने, पत्थर फेंके. बताओ धोनी की क्या गलती? वो भी एक टीम का पार्ट था, लेकिन पूरा थोड़ी था. लेकिन भीड़ है, जीती क्यों नहीं? आग लगा दी. कल को तुम्हारे सबके बैंक आ जाए मशीन में, आए तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम मेरे घर में आग लगा दो कि सर ये बहुत फफूंदी करता था, ये बहुत ही ज्यादा सर है ना हमें परेशान करता था, इसी ने सर पॉलिटिक्स की है, राजनीति की हो, आग लगा दो. मिनेरिया लेकर आ गए अपने उधर से कुछ लोग, ये लगा दो. क्यों गजेंद्र है आ रही? ऐसा नहीं है. तो भीड़ है, भीड़ का कोई सत्य नहीं होता है. इसलिए हर इंजीनियर्स हर लेवल पर, सब स्टेशन लेवल पर हमेशा एक फ्रीक्वेंसी मीटर लगा होता है. आप अगर सब स्टेशन की ट्रेनिंग की होगी तो वहां पे फ्रीक्वेंसी मीटर लगा होता है. इज इट क्लियर? देखा फ्रीक्वेंसी मीटर? ठीक है. हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में पढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी, वो कंटिन्यूस
कंट्रोल रूम में उस पर नजर रहती है। 50 से जैसे 49.55 गई एकदम हरकत में आ जाते हैं। अरे यार हमेशा आप देखना वो 49.9, 50, 49.5, 50.1 इस प्रकार का रहता है। 49.5 होते एकदम अलर्ट मोड, भागो भागो भागो। और उसका क्या होता है रीजन, और क्या करे उसका उपाय क्या है? अगर कम हो रही है फ्रीक्वेंसी, उपाय क्या है? लोड शेडिंग। क्या है? लोड शेडिंग। आप फटाफट जाओ और मोरा गणेश जी काट दो भाई, ठीक है। अच्छा जनरली है ना, शहर में नेता नगरी ज्यादा है, उनको मालूम है कभी शहर में कटा दे सब नेता, तो वहां पे आपके जात कम है और गांव में काट देते बेचारे। कहाँ का? तो रूरल में, रूरल फीडर, झाड़ूल, खेमली और कौन कौन से जो भी तुम्हारे आसपास के जो गांव है उनके लाइव फीडर कट जाते हैं, तो तब जाके फ्रीक्वेंसी वापस मेंटेन होती है। जो खासकर गर्मियों में होती है, क्योंकि गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है। एसी, सबके घर में एसी है, कूलर है। हॉस्टल में भी लोग, ये लो सर 600 रुपए फेंक रहा हूं हॉस्टल में कूलर, एकदम डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ते ही लोड काटना पड़ता है, शेडिंग करना पड़ता है, ठीक है। वही एक और दिक्कत, ये तो मैंने एक दिक्कत बताई, जब डिमांड बरसात आ गई एकदम, जैसे कल भी आई थी हल्की सी, ठीक है, गर्मी में एकदम बरसात आ गई। बरसात आते एकदम क्या होगा, एग्रीकल्चर लोड जीरो हो जाएगा। जो लोग गाँव में रहते हैं उनको मालूम है कि आज भी गाँव में खेतों में पानी किससे पिलाया जाता है? पंप्स के थ्रू। पंप मींस एक टाइप ऑफ मोटर, ठीक है। तो मोटर सारी 7.5 HP की, 10 HP की, 5 HP की, 3 HP की सारी बंद हो गई, तो एग्रीकल्चर लोड एकदम कितना हो गया? जीरो। अब जनरेशन ज्यादा है, डिमांड कम है, जनरेशन ज्यादा, तो वहां फिर आती है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ने लगती है। फ्रीक्वेंसी 50.5, 50.5 आते ही सबके धड़कन और फिर वो क्या करते हैं मालूम है? वो फोन करके करता है, अरे चलाओ मोटर, चलाओ खूब मोटर चलाओ, सारी लाइटें ऑन कर दो, ठीक है, सब कुछ कैपेसिटर बैंक वैंक सब ऑन कर दो, लो जितना जितना लेना हो लो। और लोग क्या नहीं लूंगा, आप तो बता मैं तो नहीं ऑन करूंगा, कर ले तू। जान पहचान के उनको जो भी ग्रामीण होते हैं किसान, उनको फोन करता हूँ, फोन ही नहीं उठाते। अब बता तू, तो मुझे बिजली नहीं दे रहा ना गर्मियों में, अब बरसात में मैं भी नहीं लूंगा बिजली। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो वो भी दिक्कत है। तो फिर वहां क्या करते हैं कि सब स्टेशन पे कैपेसिटर बैंक है, उनको ही ऑन कर दो, उनसे उसकी चार्जिंग करवाओ, कैपेसिटर की चार्जिंग करो, तो कुछ तो लोग जाएगा। तो स्थिति देखिए, अल्टीमेटली क्या है? यू हैव टू मेंटेन द सिंक्रोनाइजेशन। अब हम ये सिंक्रोनाइजेशन करते कैसे? सिंक्रोनाइजेशन करते कैसे? तो इसके लिए आता है हमारा, दिस इज आवर जनरेटर एंड दिस इज, आगे कहाँ है, किससे कनेक्टेड है? ग्रिड से। कहां से कनेक्टेड है? ग्रिड से। अच्छा, एक सब स्टेशन की आप लोगों ने ट्रेनिंग की होगी सेकेंड ईयर में, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, बस बार, सुना होगा, ठीक है। क्या होती है बस बार? है क्या बस बार? बेसिकली कोई बस थी वहां पे जो कह रही थी मैं झाड़ोल जा रही हूँ, बैठना बैठो, वहां बिजली लेकर जा रहे हैं, हैं? या यूनिवर्सिटी कैंपस में बिजली लेनी है भाई, बैठो 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 बैठो, हैं? 10 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट, ऐसा था क्या? बेसिकली उसका नाम बस के एक्शन से किया है। बेसिकली है क्या वो? तीन मोटे मोटे कंडक्टर्स, तीन हाईली क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर्स, आर, वाई और बी, ऐसे बिछा दिए तीनों हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब उनसे हम आगे जितने भी फीडर है, इज इट क्लियर, उनको हम सप्लाई देंगे। क्योंकि बस का काम क्या होता है? बस का काम क्या होता है? अलग अलग स्थानों पर पहुंचने वाले लोग उसमें बैठते हैं। हाँ भाई, तेरे को कहां जाना है? झाड़ू। तेरे को कहां जाना है? खेमली। तेरे को कहां जाना है? गोगुंदा। तेरे को कहां जाना है? नगर। इज इट क्लियर? तो बस पहुंचाती है। तो उसी प्रकार वो बाहर से क्या है? बाहर, बाहर मतलब वो नहीं, चॉकलेट बार नहीं होती, मिल्की बार, हाईवे मिल्की बार है, किसी ने फ्री में खिलाई होगी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो मिल्की बार, बार मतलब एक मोटा,
चॉकलेट का एक बोतल, उसी प्रकार हमारा बस बार, मतलब टोटल करंट कैपेसिटी इज वेरी हाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, तो ऐसे तीन मोटे मोटे वायर लगे होते हैं। अब उससे आर वाई और बी एक फीडर को दे दिया, यहां से आर वाई बी को दूसरे फीडर को दे दिया, यहाँ आर वाई बी को तीसरे फीडर, इस प्रकार उसने अलग अलग फीडरों को वो जनरेशन जो आया वो दे दिया, तो वो क्या कहलाता है, बस बार। वही हमारा ग्रिड है, वही हमारा ग्रिड है। इज इट क्लियर? तो ये ग्रिड जो मैं कह रहा हूं ना, तो दीज आर 3 आर वाई बी बस बार टू बीइंग हियर द जनरेटर विल बी फीडिंग। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं लैंप मेथड। क्या यूज करते हैं? लैंप मेथड। क्या यूज करते हैं? लैंप। आपको ये 3 लैंप दिख रहे हैं, आर में एक लैंप है, ये बल्ब है बेसिकली, क्या है? दिस इज ऑल्सो बल्ब, दिस इज ऑल्सो, व्हाट इज L1 L2 L3? these are the switches, these are the switches. Is it clear? Now what are the conditions? अभी मैंने बताया नहीं प्रोसेस, अभी समझो, लेकिन कौन से कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करनी है ताकि हम इन स्विचेस को पूरा ऑन करके, ताकि वो ग्रिड के साथ जुड़ जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए। इज इट क्लियर? अल्टीमेटली किसको देना है? ग्रिड को देना है, आगे ग्रिड ही तो सप्लाई करेगी। इज इट क्लियर? पूरा समझे कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कौन है? हमारी जनरेटिंग यूनिट। वो कहां कहां पे है? अच्छा, ये सब आपस में जुड़ी हुई है ग्रिड से। ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड मतलब देखिए इस प्रकार का, जैसे हमारे दिमाग में जनरली जैसे ग्रिड आता है ना, ये इस प्रकार का आता है। ये क्या है? एक प्रकार का ग्रिड है। यहां पर भी ऐसा है, जैसे मान लो ये कोटा है, ये रावत बाटा है, ये हमारा बांसवाड़ा है, ये हमारा मान लो जैसलमेर है, ठीक है, ये हमारा हनुमानगढ़ है। ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड। ऐसे मतलब क्या हुआ कि मान लो इसको कमी पड़ गई तो ये दे देगा या ये दे देगा, इसको कमी पड़ गई तो इसके आसपास वाले दे देंगे, तो बैलेंस बना रहे। और इनके बीच में आदान प्रदान भी होता है, इनके बीच में आदान प्रदान भी होता है। और ये आदान प्रदान कहां हाईलाइट होता है? द लोड डिस्पैच सेंटर। लोड सेंटर। और हमारे यहाँ राजस्थान में 3-4 जगह बने हुए हैं। एक सबसे पहला बना था आपके जयपुर में। कहां बना हुआ एरिया? एनीबॉडी फ्रॉम जयपुर? 400 केवी सब स्टेशन जो बना हुआ है, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट प्लेस, बट जहां 400 केवी है वो हमारा एक है। उसी प्रकार जोधपुर में बना हुआ है। जोधपुर में कहां बना हुआ है? सुरपुरा। सुरपुरा एरिया में बना हुआ है, जानते हो सुरपुरा? सुरपुरा, वहां 400 केवी ली बना हुआ है, ठीक है। और भी 2-3 जगह प्रयास चल रहे हैं, तो वो सब मॉनिटर करते हैं। पूरे इंडिया लेवल का उनके पास आता है हिसाब किताब एक मॉनिटर पे, ठीक है, कि एनटीपीसी इतना बना रहा है, तुम्हारा जैसलमेर वाला इतना बना रहा है, और उनको पूरा मॉनिटर, कितना एनटीपीसी दे रहा है या कितना ले रहा है। एनटीपीसी किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये हमारे ये किसके हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। तो इनके बीच में ऐसा थोड़ी है, नहीं मैं नहीं दूंगा, तो फिर तो ये वही वाली बात होगी, भारत पाकिस्तान वाली बात। लेकिन हम तो एक भारत है, एक ही है, एक ही कंट्री है, ठीक है। तो आपस में आदान प्रदान भी चलता है और इनका बिजनेस भी होता है। और बिजनेस भी ऐसा नहीं होता है फिक्स रेट पे, बिजनेस भी फिक्स रेट पे नहीं, बिजनेस भी सीजन पे, डिमांड पे, ठीक है। जिस समय गर्मियों का मौसम हो उस समय हमें लेना है ग्रिड से 12 रुपए, सर्दी में नहीं जरूरत है, ले ले यार 5 रुपए। शिव घाट में सब्जियों के भाव नहीं होते, उस स्टेशनरी दुकान पर सब्जी वाला खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो क्या नाम है उसका? जगदीश। नाम तो बड़ा प्यारा है लेकिन बहुत महंगी सब्जियां बेचता है। अब क्या करें, माँ बाप नाम ऐसे रख लेते हैं कि इसमें एक आती है सत्यनारायण की कथा, जिसमें एक व्यक्ति ने जिंदगी भर है ना कोई भगवान की पूजा नहीं की और कुछ नहीं की, लेकिन उसके बेटे का नाम रखा उसने नारायण। क्या रखा? नारायण। और अंत समय में जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण नारायण नारायण, और विष्णु भगवान खुश हो गए और उसको
मोक्ष वैकुंठ ले गए। तो ये भी हमारी ऐसी कहानियां गजब है, ठीक है, कि 3 बार नारायण बोल दो वैकुंठ पार, भली जिंदगी भर पाप करते रहो। है सत्य है उसमें, हम लोग नहीं समझ पाते, हमारी जो बचकानी बुद्धि इतनी है कि क्या 3 बार नारायण बोलो, 3 बार विक्रमादित्य बोलो, मैं इलेक्ट्रिक मशीन से बेड़ा पार, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ग्रिड मतलब समझ में आ गया आपको। अब इस ग्रिड को हमें देना है, तो हमें अल्टरनेटर और ग्रिड में क्या चीजें बराबर होनी चाहिए? ये 2 चीजें हैं आपस में, एक ग्रिड है और एक अल्टरनेटर, आपस में इनको जोड़ना है। इज इट क्लियर? तो क्या होनी चाहिए? दे शुड हैव द सेम वोल्टेज, दे शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दे शुड हैव द सेम। आप आश्चर्य करोगे, प्रैक्टिकल बात बताता हूं। एक बार 11 केवी की, ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 11 केवी की लाइन में फॉल्ट आया। 11 केवी की जो मीटर के पहले वाली लाइन होती है उसको आरएससीबी वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं वो ठीक करते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो पहले फेज सीक्वेंस था आर वाई बी, उसको उन्होंने वाई को आर में कनेक्ट कर दिया और आर को वाई में कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, चलो अब वो माउंट ये आर्य पुत्री आई और इसने कहा सर पानी पीना, मोटर चलाओ। हॉस्टल में वो मोटर चलाई, वो पानी नहीं चढ़े, मोटर तो चल रही है लेकिन पानी नहीं चल, क्यों? क्योंकि आपने फेज सीक्वेंस उल्टा कर दिया, मोटर ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया। उल्टा घूमते ही वो उसका जो एक मैकेनिज्म था, वो वैक्यूम क्रिएट करना, वो सब खत्म हो गया। वो 1 घंटे तक चलती रही और पानी नहीं चढ़ा। अब बवाल मच गया, सब ये क्या हो रहा। बाद में मालूम पड़ा कि फेज सीक्वेंस वहां से चेंज हो गया, तो वापस आर को आर में लगाया और वाई को वाई में लगाया, तब जाके हमारी मोटरें ऑन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फेज सीक्वेंस शुड बी सेम। फेज सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ कि ग्रिड का आर और दे शुड मूव एट द सेम टाइम। वाई को वाई के साथ, बी को बी के साथ। अगर आपने उल्टा कर दिया, कोलैप्स, सिस्टम विल बी ब्लैकआउट। एक भी उनका फेज भी सेम होना चाहिए। जो जनरेटर का फेज है 0 डिग्री आर का, तो उसका भी ग्रिड का भी आर का फेज का कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। वाई का -120 डिग्री है अल्टरनेटर का, तो ग्रिड का भी -120 डिग्री होना। अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक है, उसी प्रकार बी का +120 डिग्री है अल्टरनेटर का, तो ग्रिड का भी बी का कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। दैट इज मीन बाय फेज। तो these 4, when all the above conditions are satisfied, the 3 lamps will be dark. It is time to close the switch. It is time to close the switch. आप दोनों के देखोगे, क्या देखोगे कि वोल्टेज सेम है, फेज सीक्वेंस सेम है, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम है। अगर ये चारों कंडीशन सेम आती है, ये सारे लैंप क्या हो जाएंगे? डार्क। क्यों डार्क क्यों हो जाएंगे? सर आपने कहा था ना सर, आपने कहा था सर अंधेरे में फिल्म का मजा आता है। फिल्म हॉल में अगर पूरी पूरी लाइटें लगा दे, कब इंटरवल में लाइटें ऑन होती है, तो जाते वक्त लाइटें ऑन होती है, एक इंटरवल में होती है और एक एग्जिट के समय होती है, तो बताओ बीच में क्यों लाइटें ऑन होती है? मजा नहीं आता। बहुत अच्छा, मजा नहीं आता। वो मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि उस फिल्म वाले को अगर लाइट लगी होगी ना, जब लाइट लगी हुई है, ठीक है, तो आर्य कभी इधर देखेगी, वाह क्या डिजाइन बनाई है, थोड़ा कलर और कर देते, मुझे कलम दे देते तो और भी बढ़िया कर देती ब्रश से, ठीक है। दुबे कुछ, अरे यार ये पंखे यार इतने धीरे क्यों चल रहे हैं, ठीक है। उधर चित्रांशु का दिमाग गया, यार ये कौन था यार, हैरी एमएसएन यार, ये दवे सर कहाँ कहाँ से पकड़ के लेकर आ जाते हैं, ठीक है। उधर चित्रांशु, यार ओबीएस में कुछ और करता हूँ आज। तो इस लाइट की वजह से क्या है कि कभी पर्दे की तरफ, कभी इधर की तरफ दिमाग भटक रहा है, ठीक है। और उसको क्या दिखानी है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, तुम्हें फिल्म, उसके अंदर जो छुपी हुई लव स्टोरी, उसके डायलॉग जो तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, प्यार क्या तो डरना क्या, जब जब प्यार पे प्यारा हुआ प्यार और भी गहरा हुआ, इस प्रकार के डायलॉग्स तुम्हारे में रचने बसाने हैं, क्यों? ठीक है। तो वो कब होगा? जब बाकी चारों तरफ
अंधेरा और पूरा कंसेंट्रेशन किधर किधर स्क्रीन पर, स्क्रीन पर इसलिए पूरा पूरा तुम्हारा सीन एकदम एक एक फिल्म की एक एक याद रहती है कि उसने कब प्यार के वाक्य कहे, कब उसको पुलिस ने मारा, कब उसने एक्शन किया, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो डार्कनेस का मतलब टू इंक्रीज द, अब यहां डार्कनेस क्यों हो रही, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए। अरे भाई दो पॉइंट है, दुबे इधर देखना उधर नहीं। इसका वोल्टेज है V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, यहां वोल्टेज V2 इज इक्वल टू ऑल्सो 200 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम? श्योर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज श्योर। कितना करंट बहेगा अगर इसमें तो मैं एक वायर डाल दूं तो कितना करंट बहेगा? अरे कुछ तो बताओ। जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। करंट बहता क्यों? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। आपके जो बैटरी के दो पॉइंट्स है प्लस माइनस, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज एट हायर पोटेंशियल, करंट फ्लोस लाइक दिस। इज इट क्लियर हो ना? ठीक है, तो अब ये देखिए इसका वोल्टेज हो गया सेम, फेज भी सेम, सीक्वेंस भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम। किसका? ग्रिड से। दोनों के बीच में कितना होगा डिफरेंस? जीरो। तो जीरो होते ही क्या लैंप ग्लो करेगा? लैंप ग्लो नहीं करेगा। सो व्हेन ऑल द लैंप्स बिकेम डार्क, इट इज टाइम टू स्विच ऑन द switch, and that is the condition of, that is the right time of synchronization. This is known as three lamp method. तीन लैंप लगा दिए, हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि तीनों लैंप डार्क नहीं हो जाएगा। they get the time they got dark, we switch on the all the and the synchronization is being done. अरे समझ में आया कि नहीं आया? रटने की कहीं जरूरत नहीं। अगर आप इंजीनियरिंग में रटते हैं इसका मतलब कोई काल्पनिक कुछ नहीं है, सब कुछ आपके सामने। So when above condition are satisfied, the three lamps will be dark and it is time to close the switch. Second, once it is synchronized, the terminal voltage and the frequency of the alternator cannot be changed and that we require. मगर लोड के साथ ये चेंज हो सकते हैं। अगर आपने लोड नहीं लगाया है, they will remain same. If you put the load, excess load, not bearable to that generator, load demand is more, then this synchronization may be lost. So we go for load shedding. We go for load shedding. Now, you know, हमने जनरेटर के बारे में बात की। अब दो जो पॉइंट आगे लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं P और Q। ये सर्किट थ्योरी में मैंने बताया था क्या होता है P और क्या होता है Q, और ये दोनों मिलकर बनते हैं S। याद आया कुछ? व्हाट इज S? टोटल पावर। व्हाट इज P? एक्टिव पावर। और कुछ लोग उसको रियल पावर, बट रियल पावर इज नॉट द ट्रू वर्ड। द ट्रू वर्ड इज एक्टिव पावर। व्हाट इज Q? रिएक्टिव पावर, नॉट पैसिव। यू ने कि P को एक्टिव कहा तो उसको पैसिव, इट इज अ रिएक्टिव। पैसिव का मतलब तो वो कुछ काम ही नहीं करती, निढाल। वो काम तो करती है लेकिन अपने तक कन्फाइंड है। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया, कहां कर दिया? मोटर के अंदर। अब आदमी सेल्फिश, मेरे को मिला क्या, मेरे को मिला फ्लक्स नहीं, किसने लिया? मोटर ने, मैं क्या जानू। आदमी ऐसे मुंबई भाषा में बात करता है। इज इट क्लियर? बाहर आया नहीं आया अपन को क्या, बाहर कौन आया? P आया, एक्टिव दादा, ठीक है, ये रिएक्टिव मम्मी। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये S क्या है? टोटल पावर। दिस इज P और एंड दिस इज, तो अल्टरनेटर जनरेट कर रहा है, वो जनरेट क्या कर रहा है? बेसिकली टोटल पावर। व्हाट इज जनरेटिंग? और हमें उसका क्या चाहिए? क्या चाहिए? P। क्या चाहिए? P। क्योंकि एक्टिव वर्क, पंप चलाना है,
पंखा चलाना है, ट्यूबलाइट चलानी है, बल्ब जलाना है, ये डिजिटल पोडियम चलाना है, ये एलईडी स्क्रीन चलानी है, इन सब के लिए क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? मगर इनमें सब में इंडक्टेंस भी है, इनमें सब में इंडक्टेंस भी है। पंखा किससे बना? एक पार्ट क्या है पंखे का? वाइंडिंग। वाइंडिंग में क्या है? कॉइल है। कॉइल में क्या है? आर और एल। एल के लिए क्या चाहिए? ये डिजिटल पोडियम, इसमें सब में इंडक्टिव कंपोनेंट लगे हुए, कैपेसिटिव कंपोनेंट लगे हुए, उनको क्या चाहिए? क्यू। क्या चाहिए? क्यू। तो जो टोटल पावर जनरेट करेगा वो पी भी करेगा और क्यू भी करेगा। अब इन पी और क्यू को कंट्रोल कौन करते हैं? तो आगे हम पढ़ेंगे पूरा इसका पावर फ्लो डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? और उसकी भी मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक हम उसका पढ़ते नहीं है तब तक हमें लगा अरे कोई बहुत भारी चीज है। ठीक है, सो बोथ पी एंड क्यू आर बीइंग जनरेटेड बाय दिस अल्टरनेटर। ओके, एंड दिस पी, इस पी को कंट्रोल करते हैं तो हम किससे करते हैं? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर की स्पीड से। किससे करते हैं? प्राइम मूवर की स्पीड से। प्राइम मूवर कौन? जो उसके रोटर को चलाता है, जो उसके रोटर को चलाता है। मैंने ये भी बताया था कि सिंक्रोनस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इज नॉट। तो पी को अगर एक्टिव पावर को चेंज करना है, आगे हम उसको मैथमेटिकल भी समझाऊंगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ यार, पी को चेंज करना है तो किसको चेंज करना है? प्राइम मूवर की स्पीड को। और क्यू को चेंज करना है तो किससे करेंगे? क्यू को चेंज करना है तो फील्ड वाइंडिंग, दैट इज एक्साइटेशन, जो डीसी फील्ड लगाता है ना, ठीक है, उसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या चेंज होगा? क्यू। तो ये चीजें अभी मैंने आपको सिर्फ थ्योरेटिकली बताई है, प्रैक्टिकली हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करके भी प्रूव करेंगे कि पी डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर एंड क्यू डिपेंड्स अपॉन द एक्साइटेशन, दैट इज फील्ड करंट, दैट इज फील्ड करंट। अरे समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है, और ये दोनों पावर हमारी कौन जनरेट करता है? अल्टरनेटर। ठीक है, और दोनों ही जरूरी है। कैपेसिटर बैंक चार्ज किससे होगा? वो जनरेटिंग स्टेशन से ही होगा। इज इट क्लियर? इंडक्टेंस को फ्लक्स बनाने के लिए कौन करंट देगा? वही एस ही देगा। एस का एक पार्ट तो उसको आगे ये इस पंखे को दौड़ा रहा है, और एस का एक पार्ट उसको रिएक्टिव पावर दे रहा है। किसके लिए? फ्लक्स बनाने के लिए, क्योंकि सारा खेल इसका रोटेशन किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टू फ्लक्सेस, स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स, व्हेन दे इंटरैक्ट द टॉर्क इज टू स्टार्ट रोटेटिंग। हमें लेकिन बाहर से क्या मतलब है? हवा खाने से। हम ये देख रहे हैं अरे आवाज पंखा चल रहा है, अरे अंदर तूने कुछ भी किया होगा, मुझे क्या मालूम। यू गॉट माय पॉइंट? नाउ कम द पावर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब समझ में आ गया? सिंक्रोनाइजेशन, थ्री लैंप मेथड, अरे आ गया। ठीक है, अब हम बस बात करते हैं पावर के बारे में। किसके बारे में? अल्टीमेटली हमें ना तो वोल्टेज से मतलब है ना करंट से, हमें किससे मतलब है? दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, पावर से। अगर पावर जनरेट हो रही है तो हमारे आगे सिस्टम चलेगा। सुपर थर्मल पावर स्टेशन क्यों कहते हैं उसको? कितने केटीएपीएस में किसने की ट्रेनिंग की? छोटा थर्मल पावर स्टेशन। किसी भी जनरेटिंग प्लांट की एक कैपेसिटी होती है, किसमें होती है वो? गीगावाट, मेगावाट, इसमें होती है। किसमें? पावर। कभी आपने देखा सब स्टेशन सारे वोल्टेज में डिफाइन होते हैं, लेकिन जनरेटिंग स्टेशन हमेशा किसमें होता है? पावर में, मेगावाट, गीगावाट। इज इट क्लियर? तो जितना ज्यादा होगा उतना मतलब इसकी कैपेसिटी जनरेशन की ज्यादा है। हमें पूरे इंडिया की कितनी कैपेसिटी कभी पता किया? अरे तो आंखें बंद करके जाते हो। 400 गीगावाट। चित्रांश, आंखों का सही प्रयोग अगर करना सीखना है तो चित्रांशु से सीखो या कौशलेंद्र से। तुम्हारे डिपार्टमेंट में 2 बोर्ड लगा रखे मैंने। सरस्वती माँ के ऊपर पूरा जो 2022 तक का दिखा रहा है 4 लाख समथिंग मेगावाट, जिसको इसने गीगावाट में कर दिया 400 गीगावाट में। और लेटेस्ट देखना है तो जैसे ही सीढ़ियां चढ़ेंगे एक आपके फ्रेम लगा हुआ है, देखा उस फ्रेम को कभी? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं?
हाँ, तुम्हारे से मुझे एक आइडिया जरूर मिल सकता है कि सर उस पर यूं करो, दीपिका पादुकोण की फोटो लगा दो सर, हर दिन के 1 लाख व्यूज ना आ जाए सर, मान जाएंगे। एक एक व्यक्ति 1000 बार देखेगा, अरे पहले दीपिका पादुकोण फिर क्या लिखा हुआ नीचे। मतलब ये मेंटेलिटी हो गई हमारी, क्योंकि सीढ़ियों पे मैंने लगा रखा है, यू सी। और यार क्या लगा रखा है, ये क्या है हमारे काम का, द पावर प्लांट, द टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया, लेटेस्ट। स्टूडेंट को एक्सरसाइज दी, उसने बनाया। उसी प्रकार ये ग्रिड का बनाया हमने, भाई वो तिरंगा में नहीं बना हुआ है, कितने ग्रिड है हमारे देखना, टोटल इंडिया में, इंडिया को भी डिवाइड कर रखा है हमने ग्रिड्स में, टोटल कितने ग्रिड्स है वो उस नक्शे पे लगे हुए, फाइंड आउट करना। नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल लाइक दिस, जैसे रेलवे के जोन नहीं होते, नॉर्थ जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन लाइक दिस। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पे भी ग्रिड को 5 भागों में बांटा हुआ है। आज आप उस ग्रिड में भी, हर ग्रिड थर्मल कितना जनरेट कर रहा है, रिन्यूएबल कितना जनरेट कर रहा है, लिग्नाइट कितना जनरेट कर रहा है, हाइड्रो कितना जनरेट कर रहा है, ये एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू शुड नो। एवरी ईयर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीजेस दिस डेटा एवरी ईयर, हर क्वार्टर में रिलीज करती है। ईयर तो छोड़ो, ईयर में तो सेग्रीगेट आ गया, और हर क्वार्टर 3 महीने बाद, हर 3 महीने, हर 4 महीने बाद आपके रिलीज होता है कि इंडिया में आज की तारीख में 31 अगस्त 2022 तक इतना जनरेशन है, थर्मल से इतना है, आपके हाइड्रो से इतना है, रिन्यूएबल से इतना है, परसेंटेज वाइज भी लिखा हुआ। वही को हमने कौन सा, मैं कोई सर्वे करने गया क्या, बट एक नेट से, उनकी वेबसाइट से, एक ऑथराइज्ड वेबसाइट से हमने लिया और उसको हमने एक फ्रेम में प्रेजेंट कर दिया ताकि हमारे स्टूडेंट भी जान करें। यू गॉट माय पॉइंट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हेन पावर कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन means mathematical analysis, how much power is being generated. So first of all, look towards the equivalent circuit. What is this generated EMF? Its angle is delta. When we assume V is equal to how much? 0 degree. Okay. What is this? XS. What is this? RA. What is this? IA. Okay. So current is flowing this. It is in which mode? In generating mode. In which mode? Generating. अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, पूरी मैथमेटिक्स लगानी है। क्या लगानी है? मैथमेटिक्स लगाकर अब हम मैथमेटिक्स से प्रूव करेंगे कितनी एक्टिव पावर जनरेट होती है, कितनी रिएक्टिव पावर जनरेट होती है, और क्यों कहा था कि मैंने एक्टिव पावर को हम प्राइम मूवर की स्पीड से कंट्रोल कर सकते हैं और रिएक्टिव पावर को हम एक्साइटेशन यानी फील्ड करंट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम इस मैथमेटिक्स में देखेंगे। तो आज हल्का सा समझा देते हैं। व्हाट इज टोटल पावर डिफाइंड एज पर सर्किट थ्योरी? Total power is being defined as V multiplied by IA conjugate. The star sign is of the conjugate. So what is here V? V terminal. What is the current? IA, and as per the formula, it is IA conjugate. It is IA conjugate. Okay. So let us expand this. S is equal to terminal voltage का एंगल कितना माना हमने? 0 डिग्री. So I have written down VT angle 0 degree. Sure. What is IA? First of all, find out what is IA. IA means armature current. अब देखिए, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है. This minus this, phase difference of this upon total impedance will give you what? IA will give you IA. So I have written it. So how much it is IA? IA phasor is how much? Now these mind it. In the blackboard you see, in the screen you see bold letters. You screen on the C, bold letter. It is a phasor sum, mind it. This is when I write down. So when you write in the notebook or in the examination copy, you will always place a mark indicating that whatever I am doing is the taking the phasor quantity. इसलिए तो मैंने फिर यहाँ पे VT को क्या लिखा? VT एंगल 0 डिग्री. अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार IA क्या फेजर है, तो फेजरली IA कितना होगा? I am writing here
Please look, Ia phasor is how much? E angle delta minus V angle, VT angle 0 degree upon ZS upon ZS. And ZS is also associated with, let's say, angle theta. Let us say angle. You got my point or not? And the symbol conjugate is coming as per the formula. अरे समझ में आया कि नहीं आया? Okay, so we will do the rest tomorrow. These are very important from your examination point of view. Okay, these all the derivation. Till date it is clear how to find out the S. S is nothing but voltage multiplied by current conjugate in any AC circuit. Now this formula is not for only alternators. In the while teaching the circuit theory, I have already told you that this formula is applicable for all AC circuit. Voltage multiplied by current conjugate, you will get S. That is both part P and Q. So tomorrow what we will do, we will segregate all the things and what is P and what is Q and how the P is dependent on prime mover speed and how Q is dependent upon the excitation. Any doubt, any difficulty? Okay, thank you.